video, I will be exploring Kuala Lumpur, showing you the best places to visit, what to eat, how to get around, and how to easily spend 3 days here. अब हम पहुंच गए हैं कुआला लंपुर। मलाका से बस ली थी, ये हमारी बस है। यहाँ का जो बस स्टेशन भी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। अब हम यहाँ से ग्रैब बुक करेंगे और हमारे होटल की तरफ बढ़ेंगे। हमने पहले एक बस बुक करी थी मलाका से, बिलियन स्टार एक्सप्रेस। वो 11 बजे की हमने बुक करी थी एंड 10:55 पे हमें पता चला कि वो बस ही कैंसिल हो गई है। मैनेजमेंट यहाँ का काफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने हमें खुद ही बताया कि कैंसिल हो गई है। उन्होंने हमें पूरा रिफ़ंड करके दिया एंड फिर अगली बस बुक करी जो हमने की मेलोर इंटरलाइंस। इसकी बस से हम पहुँचे अब कुआला लंपुर एंड अब हम 3 दिन के लिए कुआला लंपुर में रहेंगे। यहाँ का बस स्टेशन इज़ मोर लाइक अ शॉपिंग मॉल। This is Kuala Lumpur's main bus terminal. It is very well organized and you can even connect to the metro from here. गलती से बहुत लग्जरी कार बुक हो गई है। ये हमें कॉस्ट कर रही है 38 रिंगिट्स। अब हम निकल चुके हैं अपने होटल की तरफ। कुआला लंपुर बस स्टेशन को बोलते हैं TBS। लिफ्ट लेके आपको लेवल 1 तक पहुंचना है, जहाँ पे सारे टैक्सीज का पिकअप है। वहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको अपनी कैब ढूंढने में। We finally reached our hotel in Kuala Lumpur, which was the Grand Mercure. Hello from Kuala Lumpur. Now we are leaving for KLCC Park and we have booked our Grab. Our first stop in Kuala Lumpur was Surya KLCC. It is a premium mall located right below the Petronas Towers. You'll find everything here from international brands to cafes and restaurants. One thing you'll notice in Kuala Lumpur is how well organized their traffic rules are. Even as a pedestrian, you have to follow the traffic signals and jaywalking here is strictly prohibited. After exploring Surya KLCC, we stopped by a nearby mall for a quick lunch. As it got dark, we headed to KLCC Park. Every evening, there's a beautiful light music and fountain show here. And right behind it are the iconic Petronas Towers, the most recognizable landmark of Malaysia. They were once the tallest buildings in the world and still are the tallest twin towers. You can also go inside and visit the Sky Bridge, but we chose to enjoy the view from outside. We spent the evening just sitting here watching the show and admiring the view, and that's how we wrapped up our first day in Kuala Lumpur. Day 2 started with breakfast at the hotel. After that, we booked a Grab and headed to our first stop of the day, Batu Caves. अब हम पहुंच गए हैं बाटू केव्स। हमने अपने होटल से ग्रैब बुक करी थी, दैट कॉस्टेड अस अराउंड 16 रिंगिट्स। तो एक बात समझ आइए कि मतलब इन जनरल वीकेंड्स को ग्रैब ज़्यादा महंगी होती है। कल शाम में भी मैंने चेक किया था तो तब 48 रिंगिट्स दिखा रहा था एंड आज हम 16 रिंगिट्स में पहुंच गए हैं। ये है बाटू केव्स पीछे। एक बहुत बुरी चीज़ हुई है कि यहाँ का मेजर सबसे बड़ा चीज़ इज़ द लॉर्ड मुरुगन का स्टैचू। हमारा बैड लक कि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें कुछ रिपेयर हो रहा है। कोई बात नहीं, ऊपर जाएंगे देखेंगे क्या है। As we walked in, we saw a lot of monkeys around and they are very smart. It's as if they own the place. They won't harm you, but they can easily grab food or drink, so be careful with your belongings.
Batu Caves, built in the 1800s, is one of the most important Hindu temples in Malaysia. It is dedicated to Lord Murugan and is set inside natural limestone caves. You have to climb around 272 colorful steps to reach the top. बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है यहाँ पे, कंटिन्यूअसली पानी भी गिर रहा है। कोई गिर भी गया। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड है यहाँ पे, पूरा फ्लोर भी गीला है। बहुत ही धीरे धीरे चलना होता है यहाँ पे। ये फ़ैन बचा रहा है बस। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड। बाटू केव्स में काफ़ी लंबी चढ़ाई है, ऑलमोस्ट 200 स्टेप्स की। ऊपर जाके काफ़ी गीला भी है। यहाँ पे बहुत अच्छे शूज़ पहन के आना है, नॉन स्लिप वाले, क्योंकि हमारे सामने भी 2-3 लोग फिसले हैं एंड काफ़ी हार्ड फ्लोरिंग है तो चोट भी लग सकती है। तो इसलिए ऐसे जूते पहन के आएँ जो स्लिप ना करें। बाटू केव्स की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी पेमेंट नहीं। बाटू केव्स के नीचे उतर के यहाँ पे पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं। पूरा साउथ इंडियन खाना मिल रहा है यहाँ पे। हमने जूस ऑर्डर किया है क्योंकि बहुत गर्मी है और बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लग रहा है। थोड़ा यहाँ पे ठंडे होंगे। एंड अब यहाँ से हम जा रहे हैं थियान हाउ टेम्पल, जो कि है एक चाइनीज़ टेम्पल। हम पहुंच गए हैं थियान हाउ टेम्पल। This is one of the oldest and largest Chinese temples in Kuala Lumpur. It's dedicated to Thian Hao, the goddess of the sea, and is known for its beautiful architecture. The temple also offers a great view of the city and has a very calm and peaceful vibe. Next, we headed to Bukit Bintang, which is the main shopping and nightlife hub of Kuala Lumpur. We first explored the malls here, where you will find all the big international brands. We also did most of our shopping from here, especially around Pavilion Mall. I was honestly too busy shopping, so didn't vlog much here. From here we walked towards Jalan Alor, which is famous for its street food. This place is packed with food stalls and has a great vibe in the evening. We tried chicken satay, which is one of the most popular Malaysian street foods. After that, we headed back to our hotel and just relaxed for the evening. Ended the day with a swim, which was honestly the best way to unwind. Day 3, our final day in Kuala Lumpur, started with a visit to the National Museum of Malaysia. This museum gives you a complete overview of Malaysia's history, from its early days to modern times. From traditional culture and clothing to independence and development, everything is showcased very well. This is beautiful. अभी हम हैं नेशनल म्यूज़ियम ऑफ मलेशिया में। यहाँ का एंट्री टिकट फॉर फॉरेनर्स इज़ 5 रिंगेट्स पर पर्सन। यहाँ पे 4 गैलरीज हैं, गैलरी A, B, C एंड D। हमने 3 देख ली हैं, अब हम गैलरी D की तरफ बढ़ रहे हैं।
बहुत ही क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है, हर जगह इंफॉर्मेशन मलय और इंग्लिश दोनों में दी गई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हमने कंप्लीट कर लिया है म्यूज़ियम। बहुत ही इन्होंने अच्छा बनाया है और एंटरटेनिंग भी बनाया है कि आप बोर नहीं होगे। एक ऐसा भी स्टेशन है जहाँ पे कैमरा के थ्रू आप यहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ्स को भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा बनाया है, वेरी नाइस। After that, we checked out the souvenir shop and grabbed a quick soda pop before heading to our next stop. For lunch, we decided to just keep it simple and went to KFC before heading to our final stop in Kuala Lumpur, which was the Rex KL Library. लाइब्रेरी पहले मूवी थिएटर हुआ करती थी, इसीलिए यहाँ पे ऐसे काले पर्दे हैं और सीटिंग अरेंजमेंट भी कुछ ऐसा ही है। अब मूवी थिएटर बंद हो गया है, पर उसके जगह पे अब यहाँ पे बहुत ही यूनिक लाइब्रेरी बन गई है। दुनिया के हर तरीके की बुक्स, हर जॉनरा की बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। बहुत ही यूनिक जगह है, ऐसा कुछ देखा नहीं है कभी पहले। हम आए हैं एक बहुत ही एग्जॉटिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, जो हमारे होटल के साइड में ही था। इसका नाम है चाइना हॉट पॉट। काफ़ी ऑथेंटिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। इसमें टेबल के बीच में ही ऐसा बना है। इसमें आपका सूप होगा एंड उसके साथ हमने राइस और नूडल्स भी ऑर्डर किया है एंड आवर चॉइस ऑफ मीट भी ऑर्डर करा है। अब देखते हैं इसको खाना कैसे होता है। इन्होंने हमें ये एप्रन भी दिया है पहनने के लिए और हम ये एप्रन पहन के खाना खाने वाले हैं। ऐसा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये इतना ऑथेंटिक रेस्टोरेंट है कि यहाँ पे स्पून एंड फोक भी नहीं मिलता है, सिर्फ चॉपस्टिक्स हैं। पहली चीज़ आ गई है जो है स्कैलप नूडल्स। हमारा सूप बेस भी आ गया है। इसके नीचे गैस है एंड ये पूरे समय गर्म होता रहेगा। ये वाइट कलर का क्यों है? मशरूम तो नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम पोर्क ऑर्डर किया था ना, पोर्क। मेरा ड्रिंक भी आ गया है। डिफरेंट। In the next episode, I'll show you how to travel from Kuala Lumpur to Penang by train and ferry. Hope you guys enjoyed this video. If you have any further questions, do let me know in the comment section down below. Thank you for watching and I'll see you in the next episode for another great adventure.